A very warm welcome and a good morning to all the viewers. Today, here we are with another great session happening. So, for today's session, we have Saru Sahani with us. She is from Delhi and she has a very good connection with angelic masters, angels and archangels. So, we have today with her and she will be joining us right within a few minutes. I am just connecting to her, and here we have. Hello, good morning. Good morning, Shashank. How are you? I'm fine, I'm excellent. How are you, Sharudi? I'm good, absolutely fine. Thank you so much, Shashank. Thank you so much. So first of all, I'm really excited to take this session, and I'm really grateful to Mahesh, Sahil, Hirak to have given me this beautiful opportunity to talk on this platform. And obviously, I'm very grateful to the angelic realm who gave this opportunity to me. Yes. So, yes, now you can say whatever. So, today's topic for discussion is dreams. Dreams Yes. from angelic masters, yeah, from heavens. Yes. So Yes, before yes, yes. starting the topic, I would like to ask you that how your spiritual journey started, how everything Yes. started in your life. Yeah, I'll tell you in a briefly I'll tell you how my life was. So I started meditating, Shashank, in 2011. So I was brought into meditation by one of my close friends. So before that, there was so much going on in my life, physically, mentally, emotionally, and since there was no awareness inside of me that why these physical problems they come into my life. So what happened was that I was not able to understand these things. So slowly and gradually, I got connected with Patri sir, and when Patri sir told me that, the first thing that he told me was, "Madam, you have to go a long way." And there are three things that he told me, that dhyan, swadhyay, and sajjan sangatya. So these three I brought into my life, and slowly and gradually what happened when I started reading the spiritual books along with dhyan, so the awareness actually increased. बहुत ज़्यादा मुझे जो परेशानियाँ थी उनका मुझे एक्चुअली हल मिलने लगा, सॉल्यूशंस मिले मुझे, and I was able to come out of it because I started healing myself physically, and then I started working emotionally and mentally, and then obviously the levels of spirituality were also there, so they came later, obviously. Yes. So this was something that happened, and during that period I still remember that I was in GCSS Bangalore Pyramid Valley. I was meditating and I started connecting with the angels, and when they started talking to me, I actually completely got to know that who exactly I was, what was my potential. Because I think, Shashank, I had forgotten everything, who I was and who Sharu was, because, there was so much going on. I was basically an HR manager in Tata Energy Research Institute before I got married. And after that, everything just, fell down. I didn't know what was happening with me. So slowly and gradually I got to know what my potential was and started working on myself. And today I can say, yes, I am my favorite project. So I keep working on myself every second, every minute, so every day. So I'm work in progress. जिसे quotes में बोलते हैं ना, every day आजकल quotes आते हैं. Yes. So I'm work in progress. So I keep working on myself. Yes, so, and yes. yes, and I guess that we all are work in progress, क्योंकि हम सबको अपने आप पर ही काम करना है. मतलब बाकी लोगों पे काम करने से पहले खुद को सुधारना है. So that I guess we all are work in progress.
Yes, absolutely. Because this is something that we have to do. It's a lifetime project, Shashank, I guess. Because till you die, you keep working. Because if you don't work, then you don't evolve. So this is actually, when I got in touch with Patri sir, I actually got to know what spirituality is and who I was. So that was the most beautiful thing, and I want to stay that way. And I actually tell people also that please meditate, because this is the only thing that will stay there with you. So Yes. so, okay, now I'm very excited about the topic, because generally I am excited whenever I am taking any session anywhere. I just want that people should, enjoy my sessions. They should smile. They should have a beautiful smile on their faces. They should not just be like, okay, session hai, kar lete hain vibes. That Yes. way. Yes. So, okay, the topic of today's session is dreams, how to understand your dreams. So, dreams एक ऐसा subject है which is very interesting, and I got that interest basically जब मैंने काया एंड क्रिस्टियन मुलर को सुना था पिरामिड वैली में for the first time. So I went there, I talked to them about their dreams, about my dreams and my visions. I discussed it with them, और उसके बाद धीरे धीरे, because I was connected with the angels, so I started asking them, how do I decode the dreams? कैसे कर सकते हैं हम लोग decode dreams को? So धीरे धीरे उनसे भी गाइडेंस मिलने लगा, थोड़ा अपना भी काम शुरू हुआ. So now today I can say that yes, I can decode the dreams, whatever, whosoever is getting the dreams. So, okay, so सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ कि ड्रीम्स बोलते किसे हैं. ओके, Yes. so जी. कि ड्रीम्स किसे कहते हैं. यूजुअली लोग बोलते हैं कि हाँ हम सो जाते हैं और जो हम देखते हैं दीज आर ड्रीम्स. सो बेसिकली ड्रीम्स क्या होते हैं, जो डे टाइम में आपके ईगो सेल्फ ने आपके थॉट्स और फीलिंग्स को जो सप्रेस कर दिया है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, वो रात को जब आप सो रहे होते हैं तो वो ड्रीम्स के उसमें उसके जिस तरीके से ड्रीम आप देखते हैं उस तरीके से आपके सामने वो आती हैं चीज़ें. So जी. it can be your fears, it can be something good that is happening, it can be your warning sign that the divine is trying to give you. So it can be anything. So जब हम लोग ड्रीम्स देखते हैं तो हम लोग कभी कभी डर भी जाते हैं. सो वो मैं अब आपको बताऊंगी कि उसमें क्यों नहीं डरना चाहिए, why you should not be scared of such dreams and what you should do when you are having such dreams in your life. Okay, so सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि I'll just let you know how many different types of dreams are there. ओके, कितने तरीके के ड्रीम्स होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि ओके भाई ये वाला ड्रीम मैंने देखा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रीम्स की. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रीम्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रीम्स वो होते हैं जिसमें अगर सपोज आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ एक सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में आई हुई है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो सिचुएशन आपको अपने ड्रीम में दिखाई देती है, बिकॉज दैट सिचुएशन इज समथिंग दैट द डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू टू कम आउट ऑफ इट. बाहर निकलने के लिए वो बोल रहे हैं सिचुएशन. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे एक बहुत सालों पहले, व्हेन आई स्टार्टेड डिकोडिंग द ड्रीम्स, बहुत सालों पहले एक ड्रीम आया जिसमें मैंने अपने आप को एक बस में देखा. मेरे को ट्रैवलर्स थे साथ में, एंड जो बस में हम जब जा रहे थे, इट वॉज अ वेरी बम्पी राइड. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स एंड एवरीथिंग सब कुछ था, और अचानक से थोड़े टाइम के बाद रोड पे, वहाँ पे जैसे ही रोड तक आए और रोड ख़त्म हो जाती है और बस नीचे खाई पे गिर जाती है, और खाई पे गिरते के साथ ही वो नीचे एक ओशन है उसमें गिरती है, और ओशन का पानी का कलर जो है दैट इज़ ब्लैक. So black. So I could not understand what it was. So I started asking the angels कि क्या है, what is this dream about? So then थोड़ा सा brainstorming, थोड़ा meditation, फिर meditation में बैठ के angel से बात करी मैंने प्लीज़ बताओ ये क्या है. So slowly and gradually I started decoding. What I could understand with this situation was कि मैं बस
पास्ट जो है बस इज काइंड ऑफ अ लाइफ, इट इज़ माई लाइफ. Okay, I have my family, friends and everybody because they are co-traveling with me. और जिनका बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ पे इन्फ्लुएंस है, वो लोग मेरे साथ हैं बस के अंदर बैठे हुए. और जो उन्होंने गलत चॉइसेस ली हैं, वो मैं भी गलत चॉइस ले रही हूँ अपनी लाइफ में. और जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बम्पी है, ख़राब होती जा रही है. एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसा अब मोड़ आ चुका है जिसमें मेरी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है. एंड इट जस्ट फॉल्स ऑफ, ओके, इनटू अ डिच, इनटू दैट काइंड ऑफ ओशन. अब ओशन का पानी ब्लैक है. ब्लैक मीन्स व्हेन यू सी द कलर ऑफ एन ओशन एज ब्लैक, दैट मीन्स इट इज़ टेलिंग यू दैट देयर इज़ अ वॉइड. Okay. There's a kind of a void. So it was telling me that the situation in which you are in, आप किसी void में अपने किसी void में जा रहे हैं because this situation is not going to be good for you at all. So the divine was trying to tell me that come out of it. That kind of a Yes. thing. So these are called problem solving dreams. यानी कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में ड्रीम आता है तो इसका मतलब आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ में जिसमें से आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. अगर आपको ऐसा सिचुएशन आपको लगता है तो आपको बैठना है मेडिटेशन में एंड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके. Okay. Then comes the past life dreams. Past life dreams क्या होते हैं? Past life dreams वो ड्रीम्स होते हैं जो आपको पास्ट में लेकर जाते हैं, आपके खुद के पास्ट में. यानी कि पास्ट लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट इनकारनेशंस ऑल्सो. Okay. वहाँ पे लेके जाते हैं सो दैट थोड़ी सी वहाँ पे आपकी हीलिंग हो. सो अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें पास्ट लाइफ का ड्रीम है तो इसका मतलब यानी कि आपको वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट योर पास्ट लाइफ हैज़ टू बी हील्ड एंड दैट इज़ हाउ योर करंट लाइफ इज़ गोइंग टू बी हील्ड एज वेल. Okay. Is it very confusing, Shashank? No. I can totally connect with you. Okay. I hope everybody is also connected with me. Everybody is understanding what I'm saying. So ये है पास्ट लाइफ. ओके, मुझे पता है डिकोडिंग वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है. सो लोग प्रॉब्ली एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट. बट उससे पहले कुछ समझना ज़रूरी है कि ड्रीम्स को हम क्रैक कैसे करें. तो पहले ड्रीम्स होते क्या हैं, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू जस्ट टेल यू एवरीथिंग. ओके. देन कम्स द प्रोफेटिक ड्रीम्स. ओके, प्रोफेटिक ड्रीम्स क्या होते हैं आपके, जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं. फ्यूचर के बारे में क्या बताते हैं, यानी कि जो आपने चॉइसेस ली हैं अपनी लाइफ में उसका जो एक्चुअली इमीडिएट फ्यूचर उसका होने वाला है वो आपको दिखता है प्रोफेटिक ड्रीम्स में. बट whosoever is watching, I just want to tell everybody, all the meditators here, everybody who has joined me, prophetic dreams जो होते हैं उनको आप उसमें टाइमलाइन नहीं होता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द प्रोफेटिक ड्रीम्स क्योंकि टाइमलाइन नहीं होता है. यानी कि प्रोफेटिक ड्रीम्स में ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में ही हो जाए, रियलाइज़ हो जाए, या एक हफ्ते में रियलाइज़ हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 साल में हो जाए. You don't know anything about prophetic dreams. वो कब रियलाइज़ हो जाए पता नहीं. बट there's another catch in prophetic dreams. अगर एक वार्निंग है प्रोफेटिक ड्रीम्स में और अगर आप वो वार्निंग पकड़ लेते हैं और अपनी चॉइसेस को चेंज कर लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज दैट प्रोफेटिक ड्रीम्स विल नॉट कम ट्रू एट ऑल. सपोज कोई कुछ बुरा होने वाला है आपकी चॉइस की वजह से और प्रोफेटिक ड्रीम्स में जाके आप देख चुके हैं कि हाँ आपकी चॉइस से कुछ आपका बुरा होने वाला है और उस चॉइस को आप चेंज कर लेते हो, तो वो चीज़ नहीं घटित होती है जो आपने ड्रीम्स में देखा है. इट डजंट हैपन, इट डजंट रियलाइज. एंड बाकी के जो 2 ड्रीम्स हैं उसमें कितना टाइम लग सकता है हमको डिकोड करने में? डिकोडिंग करने में वो मैं आपको बताऊंगी अराउंड 15 to 20 डेज लगता है. डिपेंड्स कि किस तरह से आप कर रहे हैं. बट पास्ट लाइफ का अगर आता है आपके पास, पास्ट लाइफ का ड्रीम आता है, दैट मीन्स वो हो चुका है ऑलरेडी. That is coming into your dreams because they are telling you, the divine is telling you that there is some healing that is required in your life. Okay? और probably your life की जो पहले के problems हैं वो आपके heal हो रहे हैं. Past life dreams are that.
समझ Okay. रहे हैं? जी ओके, आई तो होप एवरीबॉडी इज विद मी. यस यस सर, आपको आप जो अपने ड्रीम का एग्जांपल दे रहे थे, तो आपको कितना समय लगा वो बस वाला जो ड्रीम था उसको समझने में? उसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम विच आई डिकोडेड with the help of the angels, of course. During meditation, I used to meditate and then I used to seek for their help and I used to ask what is it, what is the meaning of this dream. So उसको करने में कम से कम मुझे 15 से 20 दिन से 25 दिन आई थिंक लग गए थे because I didn't know, I could not understand what is the meaning of bus, what is the meaning of the black ocean. मैंने कभी पानी नहीं देखा काला, तो you know lot of things were happening. Yes. So I'll tell you slowly and gradually how to decode also, कैसे ड्रीम्स को डिकोड कर सकते हैं आप. Okay. Now there is another kind of a dream that you get, that is a nightmare. Right? आप लोगों को Yes. नाइटमेयर्स भी आते होंगे. So एकदम से झटके से उठ जाते हैं, डर जाते हैं, you start perspiring, बहुत पसीना आ जाता है. So Yes. basically लोगों को ये लगता है कि ओ बहुत डरावना सपना देखा हमने. So nightmares क्या होते हैं? Nightmares basically तब आते हैं आपके पास जब आपका एनर्जी फील्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो हो रही होती हैं, ठीक है, और प्रॉबेबली आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसकी वजह से भी आपको नाइटमेयर्स आते हैं बिकॉज आपका एनर्जी फील्ड जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है. तो इस वजह से आपको जो है जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपकी वाइब्रेशन जो होगी वो और ज़्यादा हायर लेवल पे जाएगी. एग्जैक्टली. सो उससे क्या होगा, आपके नाइटमेयर्स नहीं ही आएंगे. बट नाइटमेयर्स जब आते हैं तो आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो कहाँ पे ट्रैवल करता है, रादर देन गोइंग इनटू द हाई वाइब्रेशनल एरियाज, इट गोज टू द लोअर वाइब्रेशनल एरियाज. इस वजह से आपको आप डर जाते हैं. लो वाइब्रेशन एरियाज में कहाँ जाते हैं आप? You go to those areas where there's lot of fear inside of you. यानी कि नाइटमेयर कुछ नहीं है बट नाइटमेयर आपको अपने फियर्स से मिलाता है. जी. You know, you come face to face with your own fears which you have been escaping from. So nightmares is nothing but that. So even if the nightmare is coming to you, you should always try to understand what that dream is trying to tell you, what that nightmare is trying to tell you. You should not just, escape, or you should not run away from that. Okay, so nightmares are also good because it is also telling you about the negative emotions that are dwelling in you. जी. Right? तो जब हम नाइटमेयर देखते हैं, जब कुछ ऐसा डरावना सपना आता है तो हम तो अचानक से उठ के उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. तो उस टाइम कॉन्शियस कैसे रह के उसको डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज नाइटमेयर्स भी आपके लिए बहुत सारे वार्निंग साइंस लेकर आता है, और एक बारी नहीं, 2 बारी 3 बारी. अगर ऐसा कुछ है जो आपको पता होना चाहिए तो नाइटमेयर दोबारा आएगा उसी सब्जेक्ट को, उसी चीज़ को लेकर. सो जब भी आप उठते हैं, क्योंकि आप किस लिए भूल जाते हैं ड्रीम्स जब आप उठते हैं एकदम से, क्योंकि इधर यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट और यू आर वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द ड्रीम, और एकदम से उठते हैं ना, जब जागते हैं तो आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो एकदम झटके से फिजिकल बॉडी में आती है. सो इट स्टार्टल्स योर माइंड एंड बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट जस्ट कम्स आउट ऑफ योर माइंड. सो जब भी अगर ऐसा कुछ हो तो उसी टाइम तुरंत जो आपने नाइटमेयर देखा है या कुछ ऐसा सपना देखा है जो आपके हिसाब से बुरा है, उसको यू स्टार्ट जॉटिंग डाउन समवेयर. चाहे एकदम से उठ के आप चाहे अपने फ़ोन के जैसे नोट्स में है, आप फटाफट से लिख लीजिए 4-5 लाइन्स कि ये मैंने देखा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, बिकॉज द नाइटमेयर्स आर टेलिंग यू टू फेस योर फियर्स. ओके, नाउ कम्स कि अगर आपको एक अच्छा ड्रीम चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. some people say that no, we want a beautiful dream, we don't want nightmares. तो उसके लिए भी थोड़ा काम करना चाहिए रहता है, ठीक है. तो उसमें भी काम करना होता है. अब सपोज इसमें मैं 4-5 टिप्स आपको बताऊंगी कि एक अच्छे ड्रीम्स के लिए आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कूल एंड कामिंग कलर्स होने चाहिए, लाइक लाइट ब्लूज, लाइट ग्रीन्स या अर्थली टोन्स होने चाहिए. Secondly, you can use the essential oils,
स्पेशली रोज एंड लैवेंडर. अगर आप रोज यूज करते हैं एसेंशियल ऑयल, सो उससे आपका एक तो जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है. इसकी वजह से देयर विल बी लॉट ऑफ लव देयर वहाँ पे आपकी पूरी सराउंडिंग में. प्लस इट विल नॉट ब्रिंग एनी नाइटमेयर इनटू दैट नाइट. रोज एसेंशियल ऑयल का एक ये फ़र्क होता है. लैवेंडर ऑयल जो होता है वो आपकी क्लेयरवॉयंस जो है उसको इंक्रीज करता है. सो उससे क्या होगा, आप ड्रीम को अच्छे से समझ पाएंगे. दैट इज़ वाई द लैवेंडर ऑयल इज बीइंग रिकमेंडेड इफ यू वांट अ गुड ड्रीम, अ ब्यूटिफुल ड्रीम. देन देयर इज यू कैन मेक अ ड्रीम पिलो. जैसे ड्रीम पिलो के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो अगर किसी को पूछने हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं. सो देयर आर थिंग्स दैट देयर इज यू कैन मेक अ ड्रीम पिलो एंड देन यू कैन पुट इट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. ड्रीम पिलो, या देयर इज अ ड्रीम पिलो. एक ड्रीम पिलो भी बनाया जाता है जो आप अपने घर में खुद बना सकते हैं. ड्रीम पिलो, ओके. yeah, it is made up of herbs and there are certain essential oils that are being used. Okay, then comes candle gazing. Candle gazing जिसे कि हम त्राटक भी बोलते हैं. त्राटक करना जिसे बोलते हैं, एक टक देखना, जो एक लॉ होती है जी, जो आग की लॉ होती है. हाँ जी. तो उसको जब हम देखते हैं, अगर हम 1-2 मिनट तक उसको देखें, सो व्हाट हैपेंस इज, ये सोने से पहले क्यों करना चाहिए? बिकॉज फायर हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसम्यूटिंग योर नेगेटिव एनर्जीज इनटू पॉजिटिव. सो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब डिजॉल्व हो जाती है एंड यू स्लीप विद अ ब्यूटिफुल माइंड, विद अ ब्यूटिफुल एंड काम माइंड. और जब आप ब्यूटिफुल एंड काम माइंड से सोते तो ऑब्वियसली ड्रीम्स अच्छे आएंगे. जी. यस. ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर मैजिक जिसे बोलते हैं. पानी में बहुत ज़्यादा पावर होती है that everybody is aware of. Yes. It is the most powerful element on earth that the divine has given us and we are very thankful that it has been given to us. So अब Yes. water magic कैसे होता है? एक फॉर्मूला है उसका बहुत अच्छा. So रात को सोने से पहले पानी का ग्लास लीजिए, ठीक है, और पानी का ग्लास पीने से पहले एक उस पानी में इंटेंट डालिए दैट आई वांट ब्यूटीफुल ड्रीम्स टुडे. ओके, एंड देन ड्रिंक हाफ ऑफ इट. आधा पानी पीजिए उसका और आधा पानी रख दीजिए. ठीक है, आधा पानी रख दीजिए. अगले दिन मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, वही पानी आपने इस इंटेंट के साथ पीना है कि मुझे सारे ड्रीम्स जितने भी मैं देख रहा हूँ मुझे याद रहने चाहिए. ठीक है, एंड देन यू ड्रिंक इट. अब वाटर मैजिक, अब क्या होगा कि, लेकिन दिस प्रोसेस हैज टू बी कंटिन्यूअस इन द सेंस फॉर एटलीस्ट फॉर 10-15 डेज. करते रहना है. Why? Because एक दिन से कुछ नहीं होगा. It has to come inside of your body. Why water? Because हमारी खुद की बॉडी 70% जो है हमारी बॉडी में पानी ही है. So जब हम इंटेंट डालते हैं इस तरीके का, तो it changes the molecular structure of the water. Absolutely. और वही पानी जब हम इंटेंट वाला पी रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी नर्व, एवरीथिंग, जहाँ पे भी जो भी है, सब कुछ चेंज होने लग जाता है. हमारा खुद का बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर, बॉडी का सब कुछ, उसमें इंटेंट, हर चीज़ में एक इंटेंट जो आपने डाला है वो आने लगता है. सो व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस फॉर एटलीस्ट 15 days, so you will start feeling that you are getting beautiful dreams in your life and you are able to also remember all the dreams. So ये चीज़ आप देखेंगे. Yes. So try it. But definitely आज ही करो. रोज करना पड़ेगा. हाँ, रोज करना पड़ेगा. नहीं, it has to be done every day. You can't just skip the days. You have to do it every day. Okay. Now the question, how to decode. Yes. Okay. So decode करने का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन वर्ड जो था, दैट वाज बीइंग कॉइन्ड बाय फ्रॉइड इन 1800, जो कि साइको एनालिस्ट्स जो थे वो यूज़ करते थे. किस चीज़ के लिए? टू सी एंड
the suppressed desires and the thoughts and the feelings of a person. इसीलिए वो यूज़ करते थे. अब वो हम लोग ड्रीम्स को डिकोड करने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन क्या होता है? आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ फ्री एसोसिएशन की. Free association means when you're spitting out all your thoughts, all your feelings, everything whatsoever unfiltered on a piece of a paper. जब कुछ भी आपके दिमाग में, दिल में, after you see a dream, कुछ भी आ रहा है, you spit it out on a piece of paper, unfiltered. यानी कि ये नहीं सोचना oh my god I had a crazy dream, मुझे लग रहा है कि मैं crazy हूँ. No. क्रेजी ड्रीम्स भी क्यों आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको. समटाइम्स यू फील ओह शिट आई हैड अ क्रेजी ड्रीम टुडे, क्या हो गया मेरे को आज, दैट वे. क्रेजी ड्रीम्स क्यों आते हैं? जनरली व्हाट हैपेंस इज व्हेन द डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू सर्टेन थिंग्स थ्रू वेरी जेंटल ड्रीम्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है. अब जो क्रेजी ड्रीम्स होते हैं दे वेरी लाउड एंड क्लियर, जो आपके दिमाग में रह जाते हैं. ठीक है. तो जब आप जेंटली डिवाइन की बात नहीं सुनते हो तो वो एक जोर से एक चांटा मारते हैं. चलो तुम्हारे को ये वाला ड्रीम देते हैं अब, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, राइट? सो इवन इफ यू आर हैविंग अ वाइल्ड ड्रीम और अ क्रेजी ड्रीम, यू शुड नॉट जस्ट गेट वरीड और एंग्शियस, जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है. अब फ्री एसोसिएशन की कुछ चीज़ें होती हैं जो करना बहुत ज़रूरी है. फ्री एसोसिएशन में सबसे पहले तो होता है यू डोंट हैव टू जज योरसेल्फ. आपको अपने आप को जज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना है. व्हाटएवर यू हैव सीन यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन समवेयर. जितना आप अपने आप को जज करेंगे उतना ही आप अपने ड्रीम्स को लूज कर देंगे. आप उसका एक्चुअल मीनिंग डिकोड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो जज नहीं करना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ. नो, व्हाटएवर इज देयर यू हैव टू राइट इट डाउन. सेकेंडली, राइट डाउन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यस. ये नहीं सोचना है कि ओ गॉड ये क्या है. ओके. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट एवरीथिंग. कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप लिख लीजिए उसको. राइट. Then comes you have to there is a time जब आपको ये लगता है कि ओके मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या लिखना है. So what you can do is you just have to pause for a little moment. Okay, think, but not for a very long time because otherwise वो thread जो है आपका ड्रीम का वो निकल जाएगा. थोड़ी देर पॉज कीजिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, and then you start writing again. Okay. Yes, and then उसके बाद आप रिफ्लेक्ट कीजिए एंड स्टार्ट ड्रॉइंग द कनेक्शन. रिफ्लेक्ट करना यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को ले लेना और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना कि ये चीज़ क्या हो सकती है, आपकी सिचुएशन से कैसे सिमिलर है. ओके. I would request each and everyone whosoever is watching this session right now is please do not go and search meanings online. उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ. यूजुअली क्या होता है, हर चीज़, सब कुछ चीज़ जो होती है वो आपको सामने जो प्रिपेयर्ड होती है वो आदत होती है कि हाँ जो प्रिपेयर्ड चीज़ है वो खा लो. बट व्हाट हैपेंस इज जब आप किसी एक बुक को ऑनलाइन आप देखते हैं उसमें हमेशा जो भी वो ऑथर रहा है या जिसने जो भी वो कुछ बोल रहा है वो इंसान अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. यस. जब भी हम ड्रीम्स देखते हैं उसका हर ड्रीम का मीनिंग एक सब्जेक्टिव होता है. मेरा ड्रीम का मीनिंग अलग होगा, आपके उसी तरीके का अगर आपको ड्रीम आया है उसके लिए अलग होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. Yes. Suppose you see color red in the dreams. I see color red in dreams. And there's another person who's seeing color red. So किसी एक इंसान के लिए color red passion हो सकता है, किसी एक इंसान के लिए color red anger हो सकता है, और किसी एक इंसान के लिए color red also can become femininity या goddess दुर्गा. Yes. ठीक है.
तो हर चीज़ का डिफरेंट कॉनिटेशन होता है. Suppose another example, suppose we take bouquet of flower. Okay, we take bouquet of Yes. flowers. So for some people, bouquet of flower means abundance. Yes. For some people, bouquet of flower means अगर वो ड्रीम्स में देख रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कोई ग्रीफ, कोई लॉस है, यानी कि कोई loved one is going to go, right? Yes. Or sometimes it happens the bouquet of flowers also can mean probably that you are not living in the present. क्योंकि flowers जो हैं wither down कर जाते हैं. आप अगर किसी को गिफ्ट करते हैं flowers, वैसे करने नहीं चाहिए because you should not do that. But अगर आप किसी को flowers गिफ्ट कर रहे हैं तो they dry down. Yes. यानी कि वो कुछ टाइम तक ही ब्लॉसम्ड रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं. सो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में नहीं हैं, यू आर लिविंग इन द पास्ट. सो द ड्रीम इज ट्राइंग टू टेल यू कम आउट ऑफ इट. Yes. So while you are decoding the dreams, it is very important that you have to understand कि ड्रीम आपको बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है ड्रीम. बिकॉज फॉर एवरीबडी the colors of the dreams, everything is different. The connotations are completely different. So please Yes. do not go online and do not search for the meanings. What you can do is meditate. Start meditating, because this is what I used to do. I used to meditate a lot. I used to ask myself. I used to go within myself and ask that what is it that the dream is trying to tell. And then I used to do free association. अब वो फ्री एसोसिएशन मैंने आपको बताया किस तरीके से करा जाता है, जिसमें कि आप वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स को एसोसिएट करते हैं. जी. राइट? आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. Yes. I hope so. This एक क्वेश्चन था एक जन के साइड से. It's from Inaya Gupta. हाँ जी. Does that apply to Kaya and Christian's book of meanings? जो आप बुक्स के बारे में. बुक्स के बारे में यानी कि वी शुड नॉट कंसल्ट. That's what I'm saying. That's okay. Inaya, hi. Basically, what I am telling you is that you should read the books, but you should also try and understand that everybody has a different experience with different things. Kaya and Christian Miller की book मैंने भी पढ़ी है. It is not that I don't read the books, but what I'm trying to say is that when you're decoding any kind of a message, it has to be a subjective understanding of your dream. अगर उन्होंने कुछ बोला है, so that means they are saying by their own experience. ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको भी अप्लाई करे. Definitely do read the books. I'm not, telling you not to read the books. You should read the books because it also widens your perspective. Okay, but you should not stick to those books itself. Yes. You should try and take their experience, but you should also see what is it that it is trying to tell you. Any other question, Shashank? I hope, Inaya, I have answered your question. Yes, मतलब आपने काफी सही से बताया कि दूसरों से सीख लेना चाहिए. ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उनके साथ जो हुआ वही अपने साथ होएगा, क्योंकि काफी टाइम हम यही सोच में रह जाते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वही अपने खोज रहे हैं. वैसा ही अगर मेरे साथ होएगा तो ही मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ. Exactly. You should always see these are inspirations. Kaya and Christian और पत्री सर, these are all our inspirations. Yes. इनसे हमें सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है, बट हमें वहाँ पे खड़े नहीं रह जाना. We don't have to be static or stagnant there. We have to keep increasing our knowledge as well. Yes. So these are gurus in their own respective fields. So we have to take the inspirations from them. Yes. Okay. So now I'm going to talk about few signs जो कि अगर आपके ड्रीम्स में अगर आते हैं, उन ड्रीम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है. Okay, there are few signs that or few dreams that I'm trying to tell you. Why also I'll tell you कि उसका मीनिंग क्या है, वो आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी. जिसमें कि सबसे पहला जो है वो होता है द चेस.
in a dream, if you are seeing somebody who is chasing you or you are being chased by somebody, यानी कि आप भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई भाग रहा है, so that means it is trying to tell you that you have to stop escaping from your own self. Okay. यानी कि वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने ही आप से भाग रहे हैं, और अगर कोई और है जो आपके पीछे भाग रहा है, इसका मतलब आप उस इंसान से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको ऐसा ड्रीम आता है, देन यू हैव टू रियली सिट एंड थिंक अबाउट योर लाइफ. यू हैव टू रियली सी व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ. किस चीज से आप भाग रहे हैं, राइट? Then comes the second one, in which if you see yourself naked, exposed, that means it is telling you that you are being very vulnerable. You don't want people to see you how you actually are. जो आप हैं, आप उसको छुपाते हैं, आप उसको दिखाना नहीं चाह रहे हैं किसी को. So now that means also that there is no self-love inside of you. So अगर आपको ऐसा ड्रीम कभी आता है, that means there is self-love that is lacking, and you have to really work on your self-love. यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, अपने आप को self-love जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपको फोकस करना है. Okay. Yes. Then comes starvation. Suppose आप देखते हैं अपने ड्रीम में कि आपका प्लेट तो खाली है, आप नहीं खा रहे हैं, बट बाकी सब लोग दे आर हैविंग प्लेंटी फुल ऑफ फूड. इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसा कुछ ड्रीम आपको आता है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रैटिट्यूड. यानी कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है किसी के लिए, ना उस खाने के लिए जो आपके पास है, ना उस इंसान के लिए जो आपको वो खाना दे रहा है, ना उस यूनिवर्स के लिए, ना उस डिवाइन के लिए जिन्होंने आप तक ये खाना पहुंचाया है, या वो फार्मर्स जो इतनी मेहनत करते हैं आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाने के लिए. यानी कि अगर ऐसा कुछ ड्रीम है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ग्रैटिट्यूड के ऊपर, उस वर्च्यू के ऊपर आपको वर्क करना है. Yes. Right? Then comes the flying ड्रीम्स. यूजुअली लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लाइंग ड्रीम्स आते हैं कि वो उड़ रहे हैं आसमान में. सो अगर आपका ऐसा ड्रीम है जिसमें कि यू आर फ्लाइंग लाइक एन ईगल, सो दैट मीन्स द एंजल्स और द डिवाइन दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ. ठीक है? Yes. थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए अपनी लाइफ का, थोड़ा अपना बर्ड्स आई व्यू से देखिए उस सिचुएशन को. डोंट हैव अ नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिचुएशन. ओके? फॉलिंग ड्रीम बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग कि ऊपर से सीधा नीचे गिरे हैं और एकदम से आवाज़ आई है ज़मीन पे, एंड वो झटके से उठते हैं. Yes. ठीक. मेरे साथ तो बेसिकली फॉलिंग ड्रीम्स क्या होते हैं? फॉलिंग ड्रीम्स जब आपके पास फॉलिंग ड्रीम्स आते हैं, सो इसका मतलब ये है कि आप किसी शेकी ग्राउंड पे खड़े हैं. यानी कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है अभी, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है अभी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बिल्ड अप सम कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ. आपको अपना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ दैट काइंड ऑफ अ ड्रीम इज़ कमिंग टू यू, दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. So you have to work on that level, the confidence level. Okay? Yes. Then comes death. Death का हर एक इंसान को, every meditator, everybody knows that what death means. So death के हर एक तरीके के अलग अलग reasons होते हैं और अलग अलग connotation है, meaning होता है उनका. So it is basically the new beginning, renewal. But suppose अगर आप किसी को मरता हुआ देख रहे हैं, so that doesn't mean it's a physical death, it is metaphorical death. So probably it's a death of a relationship, or it's a death, probably it's there is some job or a relationship that is going to finish. अगर आप किसी को bleed करता हुआ देख रहे हैं, suppose somebody is bleeding, okay? Bleeding मतलब कि आप
जिस इंसान के लिए आप वो ब्लीड होता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर से कोई लाइफ फोर्स है जो ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसके अंदर से जीने की शक्ति, जीने का एक जो विल पावर होती है वो नहीं है उस इंसान के अंदर. सो it is all metaphorical. It is nothing that you will say that, you know, it's going to have a kind of direct meaning. Dreams are all metaphorical. Then comes if you're dreaming of your ex, यानी कि आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, या एक्स स्पाउस है आपका, या हस्बैंड वाइफ, एनीबडी. So if you are dreaming about that person, that means still there is some unfinished business that is to be done. There is something that is still you have to learn from that person. अभी वो उसके साथ जो आपका एक कनेक्शन था वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, and then you have to work on it. Okay. Okay. Then comes, इसी से मिलता जुलता है, अगर आप किसी को जिसे बोलते हैं adultery in the sense when you see in your dreams that you are with somebody else but not your spouse, but not your friend. Okay, you see somebody else. So इसका मतलब है आपको अपने आप से ये ज़रूर पूछना है that, you know, are you happy in your life? With whomsoever you are living, are you happy with that person or not? So you have to ask that. Suppose आप उसके साथ एक इंसान के साथ रह रहे हैं, but वो मैरिज काम ही नहीं कर रही है because you are not spiritually, physically, mentally or emotionally involved with that person. Yes. So you have to, there's a question mark, you know, that do you want to continue, do you not want to continue? So dreams are trying to tell you that you want to be with that person or you want to be with this person. And if you want to be with this person with whom you are, then you have to work on your relationship with that person. Yes. So usually basically जब भी कभी adultery का या कभी कुछ ऐसे dreams आ जाते हैं तो लोग डर जाते हैं, oh my God, we are being, you know, we are disloyal to our spouse. Yes. It is not about disloyalty. It's not about that. It's about what you want in your life. What is it that you are asking for, or what is it that you are wanting for? Okay. Yes. Then comes sleep paralysis. अब sleep paralysis क्या होता है कि अचानक से कभी आप देखते हैं कि आप सो रहे हैं और सोते सोते क्या होता है कि आप एकदम से ऐसे अकड़ जाते हैं. You are not able to move. Yes. Right? बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि नहीं, हम ना इधर हिल पा रहे हैं ना उधर हिल पा रहे हैं, बिल्कुल स्टक हो गए हैं एक जगह. So that means, you know, something, there is a kind of a fear or an anxiety that is gripping you. आपके अंदर किसी तरीके की एंजाइटी है, किसी तरीके का फियर है जो आपको बहुत ज़्यादा जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है. So now what you have to do is you have to start working on your fears. So you have to start writing down what are the things that I'm scared about. What is it that I should be, you know, concerned about? What is it that I should not have in my life, in my physical, mental, emotional life? Yes. Okay. Then comes pregnancy. In case अगर आप अब प्रेगनेंसी का सपना खाली औरतें ही नहीं देखती हैं, आदमी भी देखते हैं. क्या होता है प्रेगनेंसी? When you are seeing a pregnant woman or a man who's being pregnant, so that means that person is pregnant with lot of ideas. यानी कि वो he or she is going to give birth to a new idea or a new project, or there is something new that is going to come in the life of that person. But Yes. प्रेगनेंसी का एक और अलग चीज़ भी है. प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी ईजी नहीं होती, डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसीज भी होती हैं. तो अगर डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी का निशान आ रहा है, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देयर इज़ अ चैलेंज दैट इज़ अहेड ऑफ यू, दैट इज़ देयर विद यू, दैट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, बट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू इट. ओके. सो प्रेगनेंसी का मीनिंग खाली एक ये नहीं है कि एक चाइल्ड बर्थ है या द चाइल्ड इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ और बेबी इज गोइंग टू कम. नो, it has different connotation, different meanings.
कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा ड्रीम्स का. Okay. One last but not the least, if you are dreaming about a loved one, so that means it's a message from that person that everything is absolutely fine. So basically जब आप जो जा चुके हैं इस डिमेंशन से, इस फिजिकल वर्ल्ड से जा चुके हैं और वो आपके पास आते हैं, सो वो एक प्यार का मैसेज, एक सपोर्ट का मैसेज, एक कंफर्ट का मैसेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं. So you should be very happy and thankful and grateful if they are coming to you in your dreams. You should not be scared at all, because generally people get scared and they feel very anxious that, oh my God, we saw our Nana ji or great grandfather, why did they come and all that stuff. You should not be scared. You should just accept them as a message from the divine, that the divine is sending you so much of blessings and the comfort. Yes. एक और लास्ट बता देती हूँ आपको, उसके बाद खत्म. So it's like if you're feeling lost, if you're seeing in your dream that you're feeling very lost, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जाना कहाँ पे है. So that means it is trying to tell you that you have to discover yourself. What is it that you want in your life? Because you are your own home. आप अपने से ही भाग रहे हैं. So if you're feeling lost, अगर आप dreams में देख रहे हैं that you're lost, you are searching for home, that means you have to come back to your own self. Yes. And you have to love yourself. True. एक छोटा सा टिप दे देती हूँ सब लोगों को जो ये सेशन देख रहे हैं. Please do not go by the literal meaning of the dream. जैसा आपको ड्रीम दिखता है वैसा ड्रीम नहीं होता है. You have to read between the lines. ड्रीम क्या कहना चाह रहा है. Because I basically believe that true discoveries are always made within our own selves. लेकिन हमें ये कंडीशन किया जाता है कि you will always get the answers without, not within. आप बाहर जाओ, फ्रेंड से मिलो, ये करो, वो करो, आपको आंसर्स मिलेंगे. But actually this is not true. You get all the answers within your own self. You don't have to go to anyone. So for that, meditate and meditate. This is the only mantra for everything. आप इसकी वजह से, मेडिटेशन की वजह से आप अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं. आप let alone the dreams, let alone the feathers, let alone anything, you can decode your entire life. You can decode yourself. Meditation is the only mantra. Yes. I hope everybody enjoyed the session, and I hope that if you've got any questions, you can ask the questions now. Yes, I'm personally really enjoying this session a lot. Thank you so much. Thank you so much. So I would like to request everyone watching this session. We have last 5 minutes of the session. अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपके, so please comment in the comment section down. एक क्वेश्चन आ गया है शायद. I would like to read. It's from Anka. Hi. If we get dream about a specific person, no. If we get dream about a specific person, repeated. लिखा हुआ भी है सामने. नहीं, मुझे एक्चुअली I could not understand. Okay. अगर आप पढ़ सकते तो बताइए. If we get a dream about a specific person repeatedly, that getting married to them, but in this physical reality the relation was not so good, what does it mean? That means if it is that, then that means you have a very beautiful connection. You shared a very beautiful connection with that person in your past life incarnations or past lives. You have shared, but it is not necessary that he is going to be with you in this incarnation as well. So what you can do is you can just give lot of love energy to that person, lot of healing to that person and your relationship. That is it. If that person is supposed to be there in your life, that person will come, otherwise not. Yes. I also have a question. Yes, you were saying something. No, I was just saying that I hope I answered Priyanka's question. Okay.
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बता रहे थे काफ़ी सारे आपने एग्जांपल्स दिए कि इफ अगर प्रेगनेंसी का ड्रीम्स आ रहा है तो उसका ये मतलब हो सकता है, इफ लव्ड वन का ड्रीम्स आ रहा है तो उसका ये मतलब हो सकता है। सिमिलरली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जब अपन मेडिटेट करते हैं तब भी अपने को ऐसे कुछ बहुत सारे सिमिलर विजन्स आते हैं कि यही कोई लव्ड वन का विजन या कुछ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, उस तरह का विजन। तो क्या ये सारे जो एग्जांपल्स है वो उधर भी रिलेट करते हैं विजन्स के लिए भी, मीनिंग्स जो थे? शशांक, मेडिटेशन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम्स आई वुड से। बिकॉज मेडिटेशन में क्या होता है, हमें विजन्स जो होते हैं स्ट्रेट अवे, हम लोग जब डिवाइन एनर्जी हम लोग लेते हैं तो हमें स्ट्रेट अवे डिवाइन इज गिविंग अस द स्ट्रेट थिंग्स एंड डायरेक्टली द डिवाइन इज टेलिंग अस समथिंग। बट जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स खाली करंट सिचुएशन के बारे में हमको नहीं बताते, वो पीछे की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमें आगाह कर रहे होते हैं। What you can do is, suppose if you are getting the similar visions, यानी कि ड्रीम्स में भी आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है और मेडिटेशन में भी, so you have to sit and you have to start writing, you journal it down, कहीं पे आप लिख लीजिए उसको and start seeing the similarity between the two। और उसमें जो चीज़ कॉमन होगा, दोनों में से जो चीज़ कॉमन होगी, इसका मतलब that is the message that is being given to you by the divine। सो उन दोनों को आपने कंपेयर करना है, द ड्रीम एंड द विजन दैट यू आर गेटिंग इन द मेडिटेशन। आपने ये देखना है कि सिमिलर क्या है। जी, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम तुषार। व्हाट इफ वी सी गॉड इन ड्रीम्स लाइक काली और शिवा? If you see dreams about the goddess and the god, yes, of course it is a beautiful experience that means you're having, in the sense that if the divine is coming to you in your dreams, that means the divine is coming with lot of blessings। और अगर आप काली को देख रहे हैं, माँ काली को देख रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज काली इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद समथिंग, you know, probably she takes away all the negativity out of you, so that means there is something that is there in your life that should not be there। So if Ma Kali is coming to you and if Lord Shiva is coming to you in a Rudra avatar, that means there is something that has to be destroyed in your life, not literally but metaphorically, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। Yes. So there's another question. Yes. Sharuji, could you please repeat the second dream of which was someone naked? Okay. Okay. So if you are seeing yourself as naked or exposed, that means that you are not comfortable with who you are। आप नहीं दिखाना चाहते किसी को भी कि आप कैसे एक्चुअली हैं, और ना ही और अपने आप से भी छुपाना चाहते हैं अपने आप को। दैट मीन्स सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर। सो यू हैव टू वर्क ऑन द सेल्फ लव थिंग। If you will start loving yourself, then what will happen is it will automatically, this dream will start going out of your life। So basically it's telling you to love yourself। Yes. So we'll just take the last question. It's from Srinita Goenka. If I get a dream of a newborn baby and a celebration, what does it indicate? न्यूबॉर्न बेबी इंडिकेट्स लॉट ऑफ थिंग्स। न्यूबॉर्न बेबी अगर आप लिटरली लें तो शायद आपकी फैमिली में कोई मेंबर आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भरने वाला है। न्यूबॉर्न बेबी ऑल्सो कैन बी दैट देर इज probably somebody who is very close to you is going to get a new job, a new home, or some enhancement in a relationship, in the sense that a beautiful relationship is going to be formed। और कुछ भी जो आपकी लाइफ में नया है और पॉजिटिव आने वाला है, that is the indication of a newborn or न्यू बर्थ ऑफ योर ओन सेल्फ, अ न्यू लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि अगर वो बेबी आपकी गोद में है तो इसका मतलब अ न्यू लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू विल बी गेटिंग। आई होप श्रीनीता जी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड यू आर सैटिस्फाइड। So from the last question, this session comes to an end. काफ़ी मज़ा आ रहा था आपके साथ ड्रीम्स को जान के,
और समय होता तो ऑब्वियसली ये सेशन काफी लंबा चलता अपना. Yes, I told Bharat yesterday कि 1 घंटा बहुत कम है, but still I'll try to concise and I'll try कि मैं उसको बिल्कुल compress करके बताऊं. So in case if anybody has any questions, so feel free to ask Yes. me on Instagram. Yes, if anyone has further questions, you can directly contact Sharudi on her Instagram profile. So it was a very great session today. बहुत मज़ा आया आपके साथ ड्रीम्स के बारे में जानकर एंड इतना सारे एग्जांपल्स मिले ताकि हम समझ पाए कि कौन से ड्रीम के ऊपर हमें अपना और काम करना है फर्दर. It was a really nice time with you. Thank you so much for Thank you so coming much. and Thank you, Shashank. giving us your knowledge. Thank you so much everyone who's been listening to me, who have joined my session. Thank you so much, Shashank. Thank you everyone. Thank you the Angelic Realm for being with me here. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. So guys, it was a really very great session today we had about the dreams, how to know our dreams, what our dreams signifies, and how we can decode our dreams and put it in our lives. So if you have any further questions, you can share with us on our Instagram page, and you can directly share with Sharu Shahani on her profile also. So guys, at last I would like to thank you all for being here with us in this session today. I hope you enjoyed it, and please do subscribe to our YouTube channel. It's named as Awakened Youths on YouTube. We have amazing contents there, and we will be putting these live sessions there also. You can also watch this live session again at our Awakened Youths channel on YouTube. So if you haven't subscribed it yet, please go and subscribe on our YouTube channel. Till then, thank you and bye bye. Have a great and beautiful day ahead.